Hello and welcome to an all new session of Ask PP. Today, we will talk about health insurance claims. Whenever we buy health insurance, our main concern is कि claim settle हो जाए. Claims is the one moment of truth, the one deciding factor which tells us कि हमने health insurance का decision ठीक लिया था या नहीं. एक general perception है among consumers कि claims pass नहीं होते हैं within the insurance industry. But what if I tell you that there are ways with which you can make sure कि आपका health insurance claim pass हो जाए? It is actually in your hands. So today we have with us Rimpi Narula from Policy Bazaar's health insurance team, who will answer all our questions regarding health insurance claims. Welcome to the show, Rimpi. Thank you, Mang. Thank you for having me. So Rimpi, when a customer is buying health insurance, what are the factors that they can keep in mind to ensure a 100% claim pass rate? Firstly, the most important factor they should consider, is claim settlement ratio of that insurer provider. So higher the claim settlement ratio, more dependable the insurer provider is. So yeah, first thing is this. Then of course you have to take care of the waiting periods, क्योंकि पीडी के साथ waiting periods आते हैं. So in case waiting period है तो वो check कर लीजिए किसी disease का. Then कोई permanent exclusions तो नहीं है. So these terms and conditions also you should take care, before buying a health insurance, so that claim के time पे आपको कोई problem ना आए. You mentioned the claim settlement ratio. Is there a way to verify the claim settlement ratio for an insurer? Yes. So आपको ये insurer की website पे भी मिल जाएगा. Typically they mention it there. And secondly, you can check the IRDAI website also. So वहाँ पे भी इनकी report पे claim settlement ratio आपको insurers के मिल जाएंगे. Oh, okay, that makes sense. And what are the terms and conditions that usually apply in this case? For the claim settlement ratio, so basically, claim settlement ratio is nothing but the number of claims our insurers has settled versus the claims received. And typically, 90-95% and above, you can really say that insurer is genuine and dependable and settling all the claims. So उसके basis पे you can decide. Yeah. And are there any policy terms and conditions that can affect my claim settlement? Okay, so as I told you, आपके अगर waiting periods हैं, so for example, I'll give you an example. अगर आप hospitalize हो जाते हैं, आपका claim है, लेकिन आपका claim वो आपके waiting period serve होने से पहले ही आ गया है, तो आपका claim settle होने में मुश्किल होगी. Similarly, अगर permanent exclusion है उस disease पे और आपने वो ध्यान नहीं दिया था, तो भी claim straight away reject हो जाता है. So ये 2-3 चीजें हैं आपको typically ध्यान रखनी है while you are buying the policy, so that claim के time पे आपको कोई परेशानी ना हो. What are the documents that a customer should be aware of? What kind of documentation goes into buying a health insurance policy and into making sure that the claim ratio is 100%, the claim pass rate is 100%? So while buying the policy, of course, अगर आपको कोई disease है, तो insurer might ask for the reports, the latest reports of that, the test that you have done. And then claim के time पे 2-3 चीज़ें होती हैं. एक तो जब आपका discharge summary है, basically आपका hospitalization के बाद एक hospital आपको discharge summary देगा. So one that, then duly signed claims form of that respective insurer. That will be required. Then third, all the bills, be it hospitalization bills, your pharmacy bills, वो सब आपको submit करने होंगे. And कोई भी tests हुए हैं वहाँ पे, X-ray reports हैं, वो भी claim के time पे आपको insurer को submit करने होंगे, so that they can evaluate that and take the decision accordingly. And while you've already covered it, but what are the exclusions and pre-existing conditions that a customer needs to be aware of in getting their claim settled? So at the time of buying the policy, 2 things you should keep in mind. One, अगर आपको कोई existing disease है, for example diabetes, hypertension, thyroid, cholesterol, asthma, so basically ये बहुत most common diseases हैं, तो ये आप ज़रूर mention करें अपनी policy में, because इन diseases के साथ कुछ waiting periods आते हैं and premium भी vary करता है insurer to insurer depending on आपके क्या diseases हैं. Secondly, permanent exclusions. ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन डिजीजेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, सो दैट कल को अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्लेम लेना हो तो आपको परेशानी ना हो. सो मोस्टली मोस्ट कॉमन एक्सक्लूजन्स वुड बी कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर नहीं होते, जैसे HIV कवर नहीं होगा, कंजेनिटल डिजीज जो हैं वो आपके कवर नहीं होते हैं. तो द कस्टमर शुड बी अवेयर सो दैट दे कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन व्हाइल बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस.
और जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो एक नेटवर्क हॉस्पिटल होता है, राइट? तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स कैसे अफेक्ट कर सकते हैं क्लेम्स को? सो आजकल तो इट हैज बिकम वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर, बिकॉज सारे इंश्योरर्स के जो नेटवर्क हॉस्पिटल है वो बहुत वास्ट है. द लिस्ट इज वेरी वास्ट. दे ऑलमोस्ट कवर ऑल दी हॉस्पिटल्स, and especially the good ones are covered. But of course, claim के time पे generally problem हो जाती है. I'll give an example. For example, अगर आप क्लेम के टाइम पे कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक तो आपका प्रोसेस बहुत सीमलेस हो जाता है और आपका क्लेम भी कैशलेस निकल जाता है, राइट? यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ योर पॉकेट. बट से देयर इज एन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस कि आपको एक नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इमरजेंसी में एडमिट होना पड़ रहा है. सो उस केस में भी जनरली क्या होता है, ऑफ कोर्स वो कैशलेस नहीं हो पाता है, तो आपको वो अपनी पॉकेट से पे करना ही पड़ेगा पूरा जो भी हॉस्पिटलाइजेशन बिल है. लेकिन बाद में आप वो रीइंबर्समेंट में डाल सकते हैं विद द इंश्योरर, विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. वो सारे आप सबमिट करके यू कैन आस्क फॉर द क्लेम. तो रिद्धि, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करी कि कैशलेस क्लेम्स होते हैं और रीइंबर्समेंट का भी ऑप्शन होता है. यूजुअली इन द कस्टमर्स इंटरेस्ट व्हाट वर्क्स बेटर? अगर मेरे को कैशलेस क्लेम होगा तो ज्यादा चांसेस हैं क्लियर होने के या रीइंबर्समेंट में? सी क्लियर अगर जेन्युइन है तो दोनों ही क्लियर हो जाएंगे फर्स्टली उमंग, राइट? बट ऑफ कोर्स जब आप पॉलिसी ले रहे हो एक बार तो आप चेक कर लीजिए कि कैशलेस नेटवर्क कितना है इंश्योरर का. जितना बड़ा नेटवर्क है उतना ही बेटर है. एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स कैश, बिकॉज हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी फ्रीडम के लिए कि क्लेम के टाइम पे मुझे पैसों का इंतजाम ना करना पड़े, राइट? सो अगर वो कैशलेस होगा, आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाओगे तो कस्टमर के लिए तो वही बेनिफिशियल है. नॉन नेटवर्क में तो जाके फिर वो हैसल हो जाएगा, बिकॉज यू डोंट नो कि कितना बड़ा क्लेम आएगा, राइट? और अगर क्लेम थोड़ा ज्यादा अमाउंट का हुआ तो उस वक्त वो पैसे देने, चाहे वो रीइंबर्समेंट में आपको मिल जाएंगे, बट उस वक्त वो पैसे हॉस्पिटल में देने शायद मुश्किल हो जाएंगे. और जैसे अगर कोई बड़ी फैमिली होती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इंडिविजुअल प्लान लोगे या फैमिली फ्लोटर प्लान लोगे. इसमें से विच वन वर्क्स बेटर फॉर क्लेम्स? इंडिविजुअल हो या फैमिली फ्लोटर हो, डायरेक्ट इम्पैक्ट एज सच क्लेम्स में कोई नहीं है. अगर आपका क्लेम आया है तो उससे किस टाइप की आपके पास पॉलिसी है वुड नॉट रियली मैटर. बट अगेन एक छोटा सा एक फर्क है. इंडिविजुअल प्लान फॉर एग्जांपल आपने अगर 10 लाख का लिया है कवर, तो वो 10 लाख आप अपने एक बंदा अपने पे यूटिलाइज कर सकता है. अगर वो क्लेम लेने जा रहा है और क्लेम अगर 10 लाख का आ गया है तो वो पूरा पे कर सकता है. फैमिली फ्लोटर में ये है, अगर एक मेंबर हॉस्पिटलाइज हुआ है और उसने 8 लाख कंज्यूम कर लिए से, राइट? एंड अनफॉर्चुनेटली दूसरे मेंबर को भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है उसी दौरान, सो उसके लिए शायद वो लिमिट फिर 2 लाख की रह जाती है. सो वहां पे उसके लिए वो शायद सफाइस ना करे उतना अमाउंट. बस इतना सा ही ड्रॉबैक है. अदर देन दैट क्लेम्स पे एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, हमारा क्लेम सेटल भी हो गया, पर हमने जो सम एश्योर्ड लिया था वो था ही इतना कम कि सेटल होने के बाद भी हमें बहुत सारे पैसे अपने पॉकेट से देने पड़े. तो आप कोई आइडियल अमाउंट रेकमेंड कर सकते हैं जो सम एश्योर्ड हमें लेना चाहिए? सी आइडियली लुकिंग एट दी मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स आर रियली वेरी हाई. एंड for yourself, for your loved ones, you would want the best कि आप जब ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हो तो आप बेस्ट ट्रीटमेंट ही दो, राइट? तो मुझे लगता है आज के सिनेरियो में स्पेशली इफ यू आर इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, आपके लिए 1 CR का सम इंश्योर तो होना ही चाहिए. बट अगर वो नहीं कोई कस्टमर ले रहा है तो 10 लाख इज द बेयर मिनिमम जो आपको कवर लेना ही चाहिए. और अगर कोई फैमिली ऐसे बिलीव करती है किसी ऑल्टरनेटिव सर्जरी में, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, स्टेम सेल थेरेपी, आयुर्वेद, इन सारे सर्जरीज, इन सारे मेथड्स, मेडिकेशन भी, ये सब भी कवर होते हैं क्लेम्स में? यस, इंश्योरेंस पॉलिसीज ये सब भी कवर करती हैं, बट ऑफ कोर्स इट वेरीज प्लान टू प्लान. कईयों में 100% कवर होता है, कई प्लान्स ऐसे होते हैं जिसमें सब लिमिट्स होती हैं. सो वो भी आपको चेक कर लेने चाहिए, सो दैट बिफोर बाइंग द प्लान आपको पता है कि इतना एक्सपेंस अगर ये आता है, मुझे एक ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा, तो शायद कुछ अमाउंट मुझे अपने पॉकेट से देना पड़ेगा. बट देयर आर वेरियस प्लान्स अवेलेबल जो 100% कवर भी करते हैं, बट प्रीमियम में वेरी अकॉर्डिंगली. एंड व्हाट इज co-payment? Because a lot of customers don't understand how co-payment works. So how does it affect claims? So co-pay is the amount which you have to pay before you can avail the benefits of a health insurance policy. So वो amount for example किसी policy में 10% 20% अगर आप co-pay ले लेते हैं, तो वो एक fixed amount आपको पहले अपनी pocket से देना पड़ता है before आपका जो medical insurance जो आपने लिया हुआ है वो activate होता है. And there are plans जिसमें co-payment बिल्कुल नहीं होता है, so आप सब कुछ zero co-pay options
बहुत अवेलेबल हैं, प्लस देयर आर ऑप्शंस कि आप कई बार कोपे खुद से भी ले सकते हैं कि आपको लगता है कि मेरे को प्रीमियम थोड़ा सा कम करना है, तो लोग 10-15-20% का कोपे भी लगा लेते हैं. So thank you for answering all our questions. Before we move to the audience section, can you sum it up? What are the top things one should keep in mind to make sure कि claim 100% pass हो जाए? उमंग, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो किसी भी कस्टमर को पॉलिसी लेते वक्त ध्यान रखनी चाहिए सो दैट क्लेम के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, इस जो भी डिजीज है या जो भी कंडीशन उनकी है एट प्रेजेंट वो डिक्लेयर करें, बिकॉज द मोस्ट कॉमन एंड मेजर रीजन फॉर क्लेम गेटिंग रिजेक्टेड इज नॉन डिस्क्लोजर्स. अगर आपने इंश्योरेंस लेते समय छोटी सी छोटी चीज़ भी हो आप डिक्लेयर कर दें, इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल. ताकि क्योंकि क्लेम के टाइम पे क्या होता है ना, जब आप क्लेम के टाइम पे वो चीज़ें बताते हैं तो वहाँ पे अगर पता लगता है कि आपने पॉलिसी लेते टाइम तो ये बताया नहीं था, चाहे वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो, वो क्लेम के टाइम पे थोड़ी परेशानी कर सकती है, राइट. तो वन इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करें. सेकेंडली ऑफ कोर्स जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जो नॉर्मली सारे कस्टमर्स बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं लेकिन बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. वेटिंग पीरियड्स देख लेते हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं जैसे सम लिमिट्स हैं या फिर परमानेंट एक्सक्लूजन्स हैं जो उस वक्त लेते वक्त ध्यान नहीं देते हैं, एंड क्लेम के टाइम पे उनको लगता है अरे ये तो पता नहीं था. So I think these things also one should keep in mind before buying a health insurance. Now it's time for our audience questions. Sure. So our first question is from Siddharth. He says that in case my claim does get rejected, is there a way to reopen it and to make sure that I can actually get it passed if I feel that it has been unfairly rejected? Of course, Siddharth, you can definitely, get your claim reconsidered. So, there are different forums where you can approach, and you can obviously, reach out to the insurer also and get your claim reconsidered. And in case, fair decision was not taken earlier, which is kind of in a very minimal cases, because इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ध्यान से सारे डॉक्यूमेंटेशन और सारे आपके रिकॉर्ड्स देख के ही डिसीजन लेती है. बट इन केस स्टिल यू थिंक कि फेयर नहीं हुआ है, सो यू कैन गेट इट ओपन एंड गेट इट रिकंसिडर्ड. And also, one of the initiatives that Policy Bazaar takes from their end is Claim Samadhan. So wherein, we call the customers and the insurer companies, and, we get the claims reconsidered, and we've got many claims, settled. So mostly Claim Samadhan दिवस है ही इसलिए, so that, अगर कोई claim पहले reject हुआ था या कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी या किसी चीज नेग्लिजेंस की वजह से वो रिजेक्ट हो गया, तो हम उसको रिकंसिडर करा देते हैं. एंड इंश्योरर्स आर आल्सो विलिंग टू रिकंसिडर दैट. एंड इन केस अगर वो एक्सेप्ट करना है या कुछ पार्ट ऑफ क्लेम है जो सेटल हो सकता है, तो वो जरूर किया जाता है. Thank you, Rimpi. That answers our question. We have another question from Aman. He says that I had bought my health insurance earlier, but I recently found out that the insurer does not have a good claim settlement ratio. Okay. Would you recommend porting, and how can I move to a better insurer? See, Aman, अगर आपका एक्सपीरियंस एग्जिस्टिंग इंश्योरर के साथ अच्छा नहीं रह रहा है, so definitely you can choose to port. And you can look for other insurers who have better claim settlement ratio and better service. So आप वो पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हो कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट सूटेबल प्लान है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्विच द प्लान. How can a customer ensure that their claim gets processed smoothly without any hassles? तो 2-3 चीज़ें हैं इसमें उमंग. सो फर्स्टली, अगर प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो आपको 48 आवर्स पहले इंश्योरर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए. इन केस इट इज़ एमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन अनप्लान्ड है, तो विद इन 24 आवर्स मेक श्योर दैट द इंश्योरर इज इन्फॉर्म्ड. वन इज़ दैट. सेकेंडली, एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज मेक श्योर सारे डॉक्यूमेंटेशन इंश्योरर के पास टाइमली पहुंच जाएं. उनमें एंड डॉक्यूमेंटेशंस विल इंक्लूड बेसिकली आपके डिस्चार्ज समरी हो गई फ्रॉम द हॉस्पिटल, देन ऑल योर बिल्स, बी इट योर हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स, फार्मेसी बिल्स, आपके जो भी रिपोर्ट्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक्सरेज एंड टेस्ट रिपोर्ट्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरर के पास पहुंच जाएं. एंड देयर इज अ फॉर्म ऑल्सो, अ फॉर्म ऑफ द रिस्पेक्टिव इंश्योरर, वो भी इंश्योरर के पास अगर पहुंच जाता है तो क्लेम के टाइम पे आई डोंट थिंक सो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एंड इट विल बी अ हैसल फ्री एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर. Thank you for all your insights, Rimpi. This has been very, very helpful. And thank you for staying tuned, audience.
We hope that we've been able to answer all your questions. If you still have any queries, any questions whatsoever, you can just put them in the comment section and we'll definitely take them up in our coming sessions. See you again next time.